بٹتی ہے رحمت کی خیرات لو، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اعتکاف کی رونقیں، الحمدللہ یہاں ایسی رونقیں لگی ہوئی ہیں، ایسی رونقیں لگی ہوئی ہیں فیضان مدینہ میں کہ جو یہاں تھوڑی دیر کے لیے بھی آتا ہے وہ یہاں کی رونقوں میں ایسا گم ہو جاتا ہے اور وہ یہ جملہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ فیضان مدینہ واقعی میں فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ میں مدینے سے فیضان آ رہا ہے، فیضان مدینہ میں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، فیضان مدینہ میں لوگوں کی تقدیریں بدل رہی ہیں، فیضان مدینہ میں لوگوں کی زندگیاں چینج ہو رہی ہیں، فیضان مدینہ میں اعتکاف میں الحمدللہ اللہ کا دین سکھایا جا رہا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں آپ کو عالمی مدنی مرکز کراچی فیضان مدینہ میں اب تک اب کی اپڈیٹ دی جائے گی اور آج کا دن کس انداز سے اعتکاف والوں کا گزرا وہ اس پروگرام میں ہم دیکھ سکیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ رمضان الکریم، رمضان الکریم، رمضان الکریم، رمضان الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ اس وقت اعتکاف والے ہمارے ساتھ ہیں، مبلغ دعوت اسلامی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ہم ان سے کچھ سنت کے مطابق گفتگو کرتے ہیں۔ یہ ارشاد فرمائے نوید باپو، سنت پر عمل کرنے کے فضائل کیا ہیں اور سنت پر عمل کرنے کی برکتیں کیا ہیں؟ فضائل اور برکتیں یہ دونوں ہمیں ارشاد فرمائیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اب سوچیں، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی ہمیں تم اپنا بنانا۔ اچھا، ایک بات عرض کرتا چلوں سید صاحب کہ سنت کی جب بات آتی ہے تو بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ اب بالکل ڈائریکٹلی داری شریف کی طرف آئیں گے، اب تو مولانا صاحب جو ہے وہ بالکل امامے پر آ جائیں گے اور مجھے زلفیں رکھوائیں گے۔ یہ تو سچی بات ہے کہ یہ سعادت کی بات ہے کہ اگر ہمارے چہرے پر موت سے قبل ایک مٹھی داڑھی شریف آ جائے، میرے آقا کی پیاری سنت سج جائے اور اس کو لے کر ہم قبر میں اتر جائیں تو سمجھ لیں کہ ہماری قبر روشن ہو جائے گی اس کی برکت سے، الحمدللہ۔ لیکن سنت تو بہت ساری ہیں، مسکرانا بھی تو سنت ہے، سنت ہے نا بھائی، دعا کرنا یہ بھی تو سنت ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح بہت سارے ایسے مواقع ہیں جس میں ہم سنتوں پر عمل کر سکتے ہیں۔ بھائی آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، الحمدللہ بڑی سعادت کی بات ہے، مجھے مسجد میں داخل ہونے کی سعادت مل رہی ہے، تو بھائی جو آپ نے داخل ہونا ہے تھوڑا سا ٹھہر جائیے اور نیت کر لیجئے کہ مسجد میں سیدھا قدم اندر رکھوں گا۔ کیوں؟ کہ میرے آقا کی سنت ہے۔ سبحان بھائی آپ اپنی عبادت سے فارغ ہو کر مسجد سے باہر نکل رہے ہیں تو تھوڑا ٹھہر جائیے اور الٹا قدم باہر نکالیے، اور اس سے پہلے یہ نیت کر لیجئے کہ جو میں قدم باہر نکال رہا ہوں یہ میں میرے آقا کے انداز پر عمل کر رہا ہوں۔ اور ذہن میں یہ بھی رکھیں جب سنتوں پر عمل کی سعادت ملے تو یہ ذہن بنائیں کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، اور ادا کس کی ہے؟ ان کی کیسی کیسی ادائیں ہیں، رب کو پسند ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب جب ان کا دیوانہ ہے، ان کا عاشق ان کی ادا کو ادا کرے گا اور ذہن میں یہ رکھے گا کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، محمد کی سنت ادا کر رہا ہوں، تو اب آپ کو کھانا کھاتے ہوئے بھی جو ہے نا میرے آقا کی یاد آئے گی۔ جی ہاں، اب کھانا کھانا ہے بسم اللہ شریف پڑھ کر کھانا ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، یہ بھی تو میرے آقا کی سنت ہے۔ اب کھانے کے دوران پانی بھی تو پینا ہے نا، تو پانی بھی بسم اللہ شریف پڑھ کر پینا ہے، سنت پر عمل کر کے پینا ہے۔ اچھا پانی یوں ہی نہیں پی لینا، اجالے میں دیکھ کر پینا ہے۔ تو سنت پر عمل کی عظمت برکت یہ ہے کہ جب اجالے میں دیکھ کر پانی پئیں گے تو شفاف پانی پئیں گے۔ اسی طرح کھانا کھاتے ہوئے آپ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائیں، پہلا لقمہ سیدھے دانتوں کی جانب سے چبانا یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ مسکرانا سنت ہے، دعا کرنا سنت ہے، پانی پینے کے بعد حمد کرنا سنت ہے، بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے۔
जी हाँ, और हमारे यहाँ दावत इस्लामी में तो कद्दू शरीफ भी बड़ा इसको है, मतलब कि हमें तो सच्ची बात है लौकी शरीफ का पता ही ये चला जब दावत इस्लामी से वाबस्ता हुए कि लौकी शरीफ खाना भी मेरे आका की सुन्नत है, और सच्ची बात है कि जब खाते हैं तो आका याद आते हैं। अब आप बताएं मुझे कि जो सुन्नतों पर सैयद साहब अमल करते हुए वो चप्पल पहन रहा है तो उससे आका याद आ रहे हैं, वो चप्पल उतारना, चूंकि उल्टे पहनते वक्त सीधे पैर में दाखिल करना पैर सुन्नत है, उतारते वक्त उल्टे पैर से पहल करना ये सुन्नत है। जिसको चप्पल पहनते वक्त, लिबास पहनते वक्त, खाना खाते वक्त, पानी पीते वक्त, मुस्कुराते वक्त, दुआ के वक्त, और ऐसे बहुत सारे मौके हैं जहाँ जहाँ इसको आका की याद आती होगी। मुझे तो ऐसा लगता है इस दीवाने के ख्वाब में रात को आका आ जाते होंगे। हम दुआ भी करते हैं, फैज़ान मदीना में है, मोतकिफीन के दरमियान है, तू बहरे शहे करबो बला ख्वाब में यारब, तू बहरे शहे करबो बला ख्वाब में यारब, फरमा दे मुशर्रफ हमें दीदारे नबी से। और अल्हम्दुलिल्लाह सही साहब दावत इस्लामी तो है ही सुन्नतों भरी थेरी। अमीर अहले सुन्नत दावत इस्लामी को लेकर चले, गोया सुन्नत को लेकर चले, आज इस अंदाज से सुन्नत को लेकर चले कि सारी दुनिया में मेरे आका की सुन्नतों का डंका बजा दिया अमीर अहले सुन्नत ने। हाँ, तो माशाल्लाह प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने सुन्नत के फ़दाइल और बरकतें सुनी। अमीर अहले सुन्नत ने वो शेर भी लिखा है कि सुन्नत आम करें, दीन का हम काम करें, नेक हो जाएं मुसलमान मदीने वाले। ये बताइए कि एतकाफ़ में किस अंदाज से सुन्नतें सिखाई जा रही हैं? एतकाफ़ में भी अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नतें सिखाने का एक बाकायदा, इसमें जो मुख्तलिफ जो इनकी नशिस्तें हैं, हाँ। शेड्यूल के मुताबिक जो इनके सिलसिले होते हैं, सेगमेंट होते हैं, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नतें सिखाने का भी सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह। तो रोज़ाना कुछ ना कुछ मुख्तलिफ सुन्नतें जो रोज़मर्रा के बंदे के जो दीन के काम होते हैं उसमें ये इन सुन्नतों के मुताबिक गुजार सके। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अमीर अहले सुन्नत के पास भी सहारी में, हालांकि सहारी करने आ रहा है बंदा, पेट भरने आ रहा है कि दिन भर मतलब कि इसको भूख प्यास बर्दाश्त करनी है, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के दस्तरखान पर आने से पहले भी मेरे आका की सुन्नतें बयान होती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नतें बयान होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो दावत इस्लामी मुख्तलिफ हलकों में शेड्यूल के मुताबिक जो हमारा पूरा एक शेड्यूल चल रहा है, तो इसमें एक अलग से सुन्नत सीखने सिखाने का भी सिलसिला है। चले, ये जो एतकाफ़ में बैठे हुए हैं इनसे भी कुछ ना कुछ सुन्नतें हम सुन लेते हैं आज। सही साहब, यहाँ ये भी कहूँगा मैं कि दावत इस्लामी से हम वाबस्ता हुए हैं और ज़ाहिर दावत इस्लामी दीन का काम कर रही है, सारी दुनिया में आका की सुन्नतें आम कर रही है। तो अमीर अहले सुन्नत ने लिखा है ना, पे तबलीग सुन्नत तू जहाँ रखे मगर एक काश। आज फैज़ान मदीना में है, कल जो है वो हैदराबाद के फैज़ान मदीना होंगे, तो मदनी काफ़िलों में भी सफ़र करना है ना, तो कभी फैसलाबाद के फैज़ान मदीना, तो कभी लाभ, तो जहाँ जाओ फैज़ान मदीना मदीना है। पे तबलीग सुन्नत तू जहाँ रखे मगर एक काश, मैं ख्वाबों में पहुँचता ही रहूँ अक्सर मदीने। माशाल्लाह जी, पानी पीने की सुन्नतें और आदाब जी। चले जी, आप कहाँ से आए? इनको माइक दीजिए। बिस्मिल्लाह बोल कर 3 साल से पानी पीना है, और पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बैठ के पीना है, देख कर पीना है, और पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह तो कहते हैं भाई जी। और कोई नाखून काटने की सुन्नतें और आदाब जी कौन बताएंगे? नाखून जी, चले जी आप बताएं। शहादत की उंगली से नाखून काटना शुरू करें और तरतीबवार नाखून के अंगूठे तक काटें, लेकिन सीधा अंगूठा रहने दें, और एंड पे सीधा अंगूठा काटें कि नाखून काटें, ताकि दाहिने हाथ से ही शुरुआत हो और दाहिने हाथ पे ही मुकम्मल। जी, हमने दोबारा इसको रिपीट कर लेते हैं, दुआ की तरह हाथ उठाएं। या अल्लाह हम सबको चांद रात को काफिले का मुसाफिर बना दे। चलें, शहादत की उंगली से शुरू करना है, छोटी उंगली पे ख़त्म, फिर उल्टे हाथ की छोटी उंगली से शुरू करना, अंगूठे पे ख़त्म, और आखिरी में सीधे हाथ का अंगूठा काटना है। तो अंगूठा नहीं काटना, अंगूठे का नाखून काटना है। ये हमने नाखून काटने की सुन्नतें और आदाब सीखी। प्यारे इस्लामी भाइयों, रोज़ाना ही कुछ ना कुछ आपको मदनी चैनल के ज़रिए एतकाफ़ की रौनकें अपडेट दी जा रही है। मज़ीद आपको अपडेट देते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम। रमज़ानुल करीम, रमज़ानुल करीम, रमज़ानुल करीम, रमज़ानुल करीम।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल जो अमीर अहल सुन्नत के दस्तरख़्वान पे सहरी करते हैं, इफ़्तार के बाद जो खाना होता है उनमें कई आशिकान रसूल को अमीर अहल सुन्नत ने तहाइफ़ तकसीम किए और वो तहाइफ़ में इनको अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरा मदनी सूट पेश किया। आइए आपको मनाजिर दिखाते हैं। कपड़े के सूट पीस है जो इस कारकर्दगी पर इंशाअल्लाह उल करीम पेश किए जाएंगे। सारे माह रमज़ान के एहतिकाफ में हूँ और ज़रूरत के अलावा बाहर ना गए हूँ। ज़रूरत है कि मसलन किताब ख़रीदनी है या कोई ज़रूरत की चीज़ ख़रीदनी है तो फैज़ान मदीना के बाद गली के अंदर से ले लीजिए, बाहर ना निकला जाए। अब तक इस साल रमज़ान शरीफ में मेरी तरफ से कोई तोहफ़ा ना मिला हो। मज़ीद इन शर्तों पर भी अमल हो। गुज़श्ता साल से मदरसतुल मदीना बालिगान पढ़ा रहे हूँ। हफ्ते में एक छुट्टी की इजाज़त। 72 नेक अमाल में से कम 50 यानी 50 पर अमल हो और दावत इस्लामी के दीनी कामों की कुछ न कुछ जिम्मेदारी भी हो। फैज़ान रमज़ान, गुफ्तगू के आदाब और नमाज के अहकाम, ये तीनों किताब में पढ़ ली हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद। प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान मदीना में स्पेशल पर्सन आशिकान रसूल के साथ हाजिर हैं। ये भी एतकाफ़ में बैठे हुए हैं जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते और एक ऐसी तादाद है जो देख भी नहीं सकती। ये नेमतों से ये महरूम है लेकिन मायूस नहीं है। दावत इस्लामी ने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे आशिकान रसूल मुल्क भर में जो सुन नहीं सकते, डेफ हैं, इशारों की ज़बान में इनको कुरान सिखाया जा रहा है, नमाज सिखाई जा रही है, कलमा सिखाया जा रहा है, सुन्नतें सिखाई जा रही हैं। उनमें क्या चेंजिंग आती है, उनमें क्या तब्दीली अब तक आ चुकी और इनका शेड्यूल किस अंदाज से एतकाफ़ में चल रहा है। आइए हम मुबल्लिग दावत इस्लामी से इसके बारे में पूछते हैं। फैज़ान भाई, अक्सर देखा है मदनी चैनल पर आप इशारों के ज़रिए बयान जो है वो बता रहे होते हैं। ये बताएं आपने ख़ुद ये कहाँ से सीखा? आप इशारों से बोल रहे हैं, आप तो माशाल्लाह बोल सकते हैं ख़ुद, लेकिन इशारे आपने कहाँ से सीखे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आलिमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में और दावत इस्लामी में स्पेशल पर्सनस का डिपार्टमेंट है, एक शोबा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके तहत 12 दिन का इशारों की ज़बान यानी साइन लैंग्वेज कोर्स करवाया जाता है, जो कि इसके अंदर अल्फ़ाबेट वगैरह सिखाए जाते हैं और रोज़मर्रा की गुफ्तगू वगैरह सिखाई जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ दावत इस्लामी में ये इशारों की ज़बान सीख कर फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम स्पेशल पर्सन जो बोल और सुन नहीं सकते उनमें नेकी की दावत देते हैं और उनको नमाज वज़ू वगैरह सिखाते हैं। ये इरशाद फरमाएं कि जैसे कराची में इन लोगों को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो सिर्फ कराची में ही या पाकिस्तान के और शहरों में भी आपके ज़िम्मेदारान हैं? नहीं बापू, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशल पर्सनस के ज़िम्मेदारान मौजूद हैं जो इनकी तरबियत वगैरह करते हैं इशारों के ज़बान में। और इसमें नाबीना इस्लामी भाइयों के ज़िम्मेदारान हम अलग बनाते हैं जो साइटेड होते हैं, ताकि इनकी भी रहनुमाई होती रहे। और स्पेशल जो गूंगे बेरे हैं उनके लिए, जिनको इशारों की ज़बान आती है, उनके लिए उनको ज़िम्मेदार बनाते हैं ताकि उनकी तरबियत का सिलसिला भी जारी रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी इनके स्पेशल पर्सन के ज़िम्मेदारान जो अमूमी हैं वो मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, देखा आपने कि ये भी मखलूक यानी ये भी इंसान है, कोई अलग मखलूक तो नहीं है और इनको भी दीन सिखाया जा रहा है। और बज़ाहिर ये बेचारे जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, आप जो मुझे सुन रहे हैं इस वक्त मदनी चैनल पर, आपको रब की कितनी बड़ी नेमत है कि आप बोल सकते हैं, आप सुन सकते हैं और आप देख सकते हैं। लेकिन जो यहाँ बैठे हुए हैं ऐसी एक तादाद है, एक हल्का इनका लगा हुआ है कि जो इस नेमत से महरूम है और अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर भी हर हाल में रब का शुक्र अदा करते
کرتے ہیں اور وہ شکر میں کہتے ہیں الحمدللہ. یہ ارشاد فرمائے کہ آپ لوگ ان کو کیا کیا سکھاتے ہیں دین کے بارے میں؟ الحمدللہ ہمارا فیضان نماز کورس ہوتا ہے 7 دن کا، جس کے اندر ہمارے گونگے بیروں کو جو بول اور سن نہیں سکتے ان کو اشاروں کے زبان میں وضو، غسل، نماز کے فرائض، واجبات، مفسدات الحمدللہ ان کو سکھایا جاتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے نابینا اسلامی بھائیوں کے بھی کورسز ہوتے ہیں جس میں نماز کورس ہوتا ہے اور اصلاح حمال کورس ہوتا ہے، جس کے اندر ان کو بھی ان کی جو ان کے مسائل ہیں اور ان کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے الحمدللہ ان کو مسائل وغیرہ سکھائے جاتے اچھا، ہیں. دعوت اسلامی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا پورا نام کیا ہے ڈپارٹمنٹ کا؟ اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ. تو چلے ہم یہ چاہیں گے فیضان بھائی کہ جو یہاں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ ان کے تاثرات اگر اسپیشل پرسن کے، اب ظاہر یہ بول تو سکیں گے نہیں، اگر یہ خود اشاروں سے بتائیں آپ کو اور آپ زبان سے ہمیں سنا دیں یہ کیا بولنا چاہ رہے ہیں. الحمدللہ جب میں اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ اور دعوت اسلامی سے میں نے تعلق کیا تو الحمدللہ مجھے کئی علم دین سیکھنے کو ملا. الحمدللہ اللہ پاک خوف خدا نصیب ہوا، عمل کا جذبہ نصیب ہوا اور پتہ چلا کہ کیا چیز غلط ہے کیا چیز صحیح ہے. اور الحمدللہ یہاں پہ میں ڈیف اسلامی بھائیوں کو دعوت بھی دیتا ہوں کہ فیضان مدینہ آئیں، یہاں پہ سیکھیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور اعتکاف میں بھی 10 دن کے بھی اسلامی بھائی بہت زیادہ انشاءاللہ تشریف لے کر آئیں گے. الحمدللہ امیر اہل سنت سے تو ہمیں بہت زیادہ محبت ہے. امیر اہل سنت ہیں تو ہم الحمدللہ ہیں. امیر اہل سنت کو اللہ پاک دراز بالخیر عمر عطا فرمائے. میرا میسیج یہ ہے کہ سارے ڈیف جتنے بھی ہمارے اسپیشل پرسنس ہیں وہ فیضان مدینہ آئے، دعوت اسلامی کے ساتھ جوائنٹ ہو جائیں اور تاکہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی عمل کا جذبہ ملے گا. دیکھ لیں پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جو یہ بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، اشاروں کے ذریعے بتا رہے ہیں آپ بھی دعوت اسلامی میں آ جائیے، آپ بھی دین کی طرف آ جائیے. بالخصوص یہ ان کو مخاطب کر رہے ہیں اشاروں کے ذریعے جو دنیا بھر میں ایسے لوگ ہیں. اگر آپ کے شہر میں، آپ کے وطن میں، آپ کے گاؤں میں کوئی ایسے افراد ہیں جو بول نہیں سکتے تو سن نہیں سکتے، دعوت اسلامی کے نگرانوں سے، ذمہ داران سے آپ رابطہ کریں. اچھا، یہ جو بیٹھے ہیں اسلامی بھائی، یہ بھی کچھ اپنا تعارف ان کا بتائیں. میں الحمدللہ ملتان سے آیا ہوں یہاں 1 ماہ اعتکاف میں. پہلے مجھے کچھ بھی پتہ نہیں تھا اور مجھے یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ کیا چیز سیکھنی ہے کیا چیز نہیں سیکھنی. میری داڑھی وغیرہ بالکل بھی نہیں تھی، میں ایک ماڈرن نوجوان تھا. الحمدللہ میں نے ملتان میں فیضان مدینہ میں نے اجتماع میں شرکت کری. اجتماع میں شرکت کی برکت سے میں دعوت اسلامی سے وابستہ ہوا، داڑھی رکھی، امامہ سجایا، امیر اہل سنت کو دیکھا. امیر اہل سنت سے مجھے بہت محبت ہے الحمدللہ. پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ پہلے آپ کو بہاریں بتائی جاتی تھی، آپ کو بہار دکھائی جا رہی ہے کہ یہ نوجوان جو بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، ملتان سے ان کا تعلق ہے. دعوت اسلامی نے ایسے کو بھی چینج کر دیا، کہہ رہے ہیں میں نے نماز سیکھی اس ماحول میں آ کر اور اس ڈپارٹمنٹ کے ذریعے میں نے داڑھی بھی رکھی، امامہ بھی سجایا. اچھا پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اسلامی بھائی جو ہمیں اعتکاف میں الحمدللہ حلقے میں نظر آئے، یہ دیکھ نہیں سکتے اور اللہ ان کو بار بار مدینہ دکھائے، لیکن یہ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے. الحمدللہ اگر ان کے آنکھوں کی روشنی آ جائے تو یہ سب سے پہلے کیا دیکھنا چاہیں گے؟ مدینہ. یہ کہہ رہے ہیں آنکھوں کی روشنی آ جائے تو سب سے پہلے میں مدینہ دیکھوں گا، گنبد خضرا دیکھوں گا انشاءاللہ. تو یاد رکھیں کہ ایک بار مکۃ المکرمہ میں ہم موجود تھے اور ایک نابینا یعنی جو دیکھ نہیں سکتے تھے وہ کسی کے سہارے عمرہ کرنے کے لیے مکہ پہنچے. جب کعبۃ اللہ آ گیا تو ان کو بولا گیا کعبہ آ چکا ہے، اپنے لیے دعا مانگ لو. تو وہ نابینا تھے، دیکھ تو سکتے نہیں تھے، تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا مانگی، یا ربنا بلایا بھی تو نے ہے، دکھا بھی دے اپنی چوکھٹ، میں دیکھ نہیں سکتا، بڑی دور سے تیری چوکھٹ پر آیا ہوں. اور یہ روتے ہوئے دعا مانگی اور طواف کیا، طواف کی نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے صفا مروہ کی سعی کری اور سعی کر کے وہ شخص جو تھا مسجد الحرام میں سو گیا. جب سوئے تو خواب میں ایک بزرگ کی زیارت ہوئی اور وہ بزرگ فرمانے لگے اٹھ زمزم پی اور آنکھوں میں ڈال. لہٰذا وہ نابینا اسلامی بھائی جب اٹھے تو انہوں نے کسی سے پانی مانگا، زمزم دیا گیا، وہ پیا اور جب اس کے قطرے اپنی آنکھوں میں ڈالے تو رب نے ان کی آنکھوں کو روشن کر دیا. وہ شخص روتے ہوئے کہنے لگا اے لوگوں، میں نابینا تھا، زمزم کی برکت سے میرے رب نے مجھے آنکھوں کی روشنائی عطا کر دی. تو پتہ چلا کہ جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. جی کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ حافظ محمد فاروق اتاری. فاروق بھائی، اعتکاف کیسا چل رہا ہے؟ آپ کو کیسی فیلنگ ہے یہاں پر آپ کی؟ الحمدللہ کئی ایسے مسائل ہیں کہ میں
जब एतकाफ़ में आया या मदनी मुज़ाकरे में सुनता था, अक्सर मसाइल ऐसी हैं कि जैसे फसल का उशर वगैरह, नमाज़ पढ़ने का तरीका, नाम रखने का और पुकारने का तरीका, अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे मदनी मुज़ाकरे की बरकत से मुझे इसका इल्म हुआ। अच्छा ये बताएं, एतकाफ़ में आपके लिए आजमाइशें भी होंगी, ये ख्याल रखते हैं खाने पीने में, आपको वॉशरूम जाना, वज़ू करना है, तो इसका क्या तरीका है? अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए कि हमें कोई परेशानी नहीं बनती कि अल्लाह ताला दावत इस्लामी को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्कियाँ अता फरमाए। ख्याल रखते हैं ये आप लोगों का, अल्हम्दुलिल्लाह, किस अंदाज से रखते हैं? लेकर जाते हैं खाना वगैरह में, कोई परेशानी नहीं बनती। खाना वगैरह भी देते हैं आपको सही? हाँ जी, हर चीज़ अल्लाह ताला की शुक्र है कि हमें हर चीज़ सही मिलती है। तो वो अफराद जो दावत इस्लामी के साथ माली ताउन करते हैं, दावत इस्लामी को ज़कात देते हैं, दावत इस्लामी को फ़ितरा देते हैं, सदक़ात देते हैं, दावत इस्लामी को किसी भी हवाले से वो दावत इस्लामी में अल्हम्दुलिल्लाह अपना हिस्सा मिलाते हैं, देख लें आपकी दावत इस्लामी किस अंदाज से लोगों को अल्लाह का दीन सिखा रही है, लोगों की इस्लाह कर रही है। जो देख नहीं सकते उनका किस अंदाज से यहाँ ख्याल रखा जा रहा है। कोई मैसेज देना चाहें आप नौजवानों को, अब देना चाहें नाजरीन को दावत इस्लामी के हवाले से कोई मैसेज? यही अर्ज़ है कि दावत इस्लामी में कम से कम हर महीने में 3 दिन या 2 महीने में 3 दिन, साल में 1 माह कर लेना चाहिए। 3-4 माह में चलो फ़ज़ाइल नमाज कोर्स कर ले। मैं अपने दोस्त को भी फ़ोन किया था, अपने कज़न को भी, अपने बच्चों को दावत इस्लामी में 1 माह का सफ़र करा। और आप भी कोर्स किया करो, 2 महीने बाद 3 महीने बाद कम से कम रमज़ान शरीफ के अपना फ़ज़ाइल नमाज कोर्स वगैरह कर लिया करो। कई मसाइल ऐसे हैं कि हमको पता भी कुछ होता है, पर उसका ज़हन में नहीं होता कि क्या है, वो करना क्या है, नमाज की शराइत कैसे हैं, पता ही नहीं होता। सही, उसमें आप यहाँ सिखाया जाता है उनको, नमाज की शराइत, फ़राइज़, वाजिबात, हर चीज़ सिखाई जाती है। अल्लाह ताला इन्हें दावत इस्लामी को ताकि क़यामत शादो आबाद फरमाए। ये याद रखें कि कोई अगर देख नहीं सकता, कोई नाबीना हमें नज़र आए, तो हदीस पाक में सरकार नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा नाबीना शख्स को 40 कदम लेके चले तो उसके चेहरे को जहन्नम की आग नहीं छुएगी। कितनी बड़ी फजीलत है। आप रोड पे देखते हैं उमूमन अगर कोई ऐसे शख्स हमें भाई नज़र आ रहे हैं तो हमें रोड क्रॉस करा देना चाहिए। आप मस्जिद के अंदर हैं, अगर कोई हमें इस तरह का भाई नज़र आए तो हमें उनको अंदर लेके 40 कदम, अल्लाह तौफीक दे तो हम 40 कदम तक पहली सफ़ तक छोड़ कर आएँ। ऐसे शख्स हमें मिले तो पानी पीना है तो पानी का पूछ लें। तो याद रखें कि सरकार की दुखियारी, उम्मत की खैरख्वाही करना ये नसीब वालों का हिस्सा होता है। और आपकी दावत इस्लामी किस अंदाज से लोगों को दीन सिखा रही है, पहले सुनाते थे, अब आपको दिखाया जा रहा है। अल्लाह ने करम ऐसा किया तुझ पे जहाँ में, ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमज़ानुल करीम, रमज़ानुल करीम, रमज़ानुल करीम, रमज़ानुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मुख्तलिफ आशिकान रसूल जो है वह एतकाफ़ में मिल रहे हैं, हर कोई अपने ही तासुरात दे रहा है। एक अत्तार हैं, लाखों करोड़ों बीमार हैं, निगाहें अत्तार में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों लाखों बल्कि करोड़ों की तकदीर देखी। ये इस्लामी भाई आप देख रहे हैं और मदनी चैनल पे आप इनकी साबिका तस्वीर देख रहे हैं। एक मॉडर्न नौजवान, ना दाढ़ी थी, ना इमामा था, ना नमाज पढ़ते थे, दीन से ये किस कदर दूर थे। आज आप देख रहे हैं कि इनके सर पे इमामे का ताज है और चेहरे पे दाढ़ी है। 12 महीने के काफिले में ये चले गए और 12 महीने इनके अभी पूरे होने लगे, यानी 1 साल का काफिला। क्या कहना चाहेंगे आप, काफिले में गए, क्या मिला आपको? काफिले में जनाब हमने वो चीज़ें सीखी जो कभी हमें किसी ने बताई नहीं थी। चेंज कैसे हुए एकदम आप? चेंज हमारे जो मौलमीन थे उनके तरबियत से और अत्तार की तरबियत से अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा फैज़ मिला कि हमने खुद को चेंज कर लिया। सही है, एतकाफ़ में आ गए आप? अल्हम्दुलिल्लाह एतकाफ़ में आए और एतकाफ़ में वो चीज़ें देखने को मिली जो कभी हमने देखी नहीं थी, सुनी नहीं थी, कभी हमें वो चीज़ें मिली नहीं थी। आप एतकाफ़ में नहीं थे जब 12 महीने के लिए नहीं आए थे, आपकी लाइफ कैसे गुजर रही थी, ज़िंदगी कैसी थी? हमारी लाइफ बहुत ही मॉडर्न और अजीब किस्म की थी। जैसे मसलन के नौजवानों के साथ लोफरियाँ मारना, इधर उधर घूमना फिरना, नशे में पूरी रात नशे की हालत में रहना। लेकिन लोग कहते हैं कि भाई नशा छूटता नहीं है और मैं इस चीज़ को नहीं। वालिद साहब भी परेशान थे जब आप नशे पूरी में फैमिली परेशान थी और लोग भी परेशान, सारे परेशान थे कि सबसे छोटे थे घर में आप? जी सबसे छोटा हूँ।
अच्छा, सबसे छोटे आप हैं? जी, जी, जी। तो चेंज करने का कैसे फिर आपने किया? मदनी काफले की बरकत है, इस्लामी भाई आए कुछ, उन्होंने मदनी काफले की दावत दी और फिर बस एक हिदायत का होता है, वो कहते हैं अल्लाह पाक जिससे अपनी तरफ माइल करता है तो उसे नेकी की राह दिखाता है। तो मदनी काफले में इस्लामी भाई ने दावत दी। पहले तो एक दफ़ा सोचा कि यार मौलवी हैं, इनके पास कैसे जाऊँ, तो फिर जहन बना कि यार जाता हूँ। फैज़ान मदीना आया तो यहाँ पे शागिर भाई मिले, उनसे फिर 12 माह ने उन्होंने मेरे को भेजा। 12 माह में आया तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ ऐसी चेंज हो गई, दिली सुकून मिल गया। माशाल्लाह। तो यूं बदलते हैं बदलने वाले बदल रहे हैं, ज़िंदगियां तब्दील हो रही हैं। पहले आपको बताया जाता था, अब आपको दिखाया जा रहा है। अल्लाह इनको भी और मुझे भी, हम सब को दीन पर इस्तिकामत नसीब करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। क्यों रो रहे हैं, आपके आंसू क्यों आंखों में? ज़ियारत करके आ रहे हैं। किसकी ज़ियारत करी आपने? मेरे अहले सुन्नत के साहबज़ादे की। साहबज़ादे को देखकर आपकी आंखें अश्कबार हो गईं। जी। कैसा चेहरा है उनका जो आप रो पड़े? नूर से भरा हुआ है माशाल्लाह। अच्छा, अल्लाह अकबर। आपकी ज़िंदगी कैसी थी? आप यहाँ क्या मिला आपको फैज़ान मदीना में? बहुत कुछ मिला। मसलन जो पिछली ज़िंदगी गुजारी है बेकार है, जो हमने इधर 17 दिन गुजारे वो हमारे दिन है, ज़िंदगी है वो हमारी। पिछली ज़िंदगी कुछ नहीं थी, बेकार थी, गुनाहों में मुब्तला थे हम। अल्लाह। कायदा, नमाज, तहज्जुद और तरह तरह के तरीके बताए। दावत इस्लामी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। जो नौजवान नहीं आ रहे दीन की तरफ, उनको क्या बोलेंगे आप? मेरा तो यही कहना है कि दावत इस्लामी की तरफ हो जाओ, ज़िंदगी बदल जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। दुनिया में कुछ भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा। हौसला रखें, अल्लाह आपको मदीना दिखाए, आप काबे का तवाफ करें जाकर। पीर मुर्शिद को मैं कहना चाहता हूँ, मैं मुल्तान से आया हूँ, गुनाहगार हूँ, आया भी अकेला हूँ, मैं अपने साथ किसी को भी नहीं लाया। मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ सच्चे दिल से। या अल्लाह तमाम नौजवानों को तौबा की तौफीक अता फरमा। मेरे पीर मुर्शिद की सदके हमें बख्शते हैं। जो दावत इस्लामी से दूर है, मैं कहता हूँ वो दावत इस्लामी के करीब हो जाए, जिंदगी बदल जाएगी, आखिरत बन जाएगी इंशाल्लाह। तो प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि आंखें अश्क बार हैं और गुनाहों से ये नौजवान तौबा कर रहा है। कह रहे हैं कि मैं पहले की ज़िंदगी मेरी कैसी थी, जो मेरी ज़िंदगी 17 दिन फैज़ान मदीना में गुज़रे हैं, यही मेरे 17 दिन जो हैं यही असल ज़िंदगी है। जो पिछली ज़िंदगी मेरी गुज़र गई वो गुनाहों भरी ज़िंदगी थी और मैं अपने तमाम गुनाहों से तौबा करता हूँ। आप देख रहे हैं कि इन्होंने सर पर इमामा सजा लिया है, इन्होंने चेहरे पे दाढ़ी सजा ली है और अब नियत कर ली है कि मैं दीन का मुबल्लिग बनूंगा इंशाल्लाह, दीन को फैलाएंगे इंशाल्लाह। काफलों में भी सफर करूंगा इंशाल्लाह, हर माह 3 दिन काफले में भी जाऊंगा, कोर्स करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज के प्रोग्राम में आपको एतकाफ़ की रौनकें, एतकाफ़ के शेड्यूल की अपडेट दी गई कि अब तक एतकाफ़ में अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन किस अंदाज से गुजारा गया। अगले प्रोग्राम के लिए इख्तिताम पे मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगले नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपको फैज़ान मदीना और कई शहरों में जो एतकाफ़ हो रहा है उसकी कुछ ना कुछ अपडेट दी जाएगी। देखते रहिए मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम। आओ बटती है रहमत की खैरात लो, दीनी माहौल में कर लो तुम